Hello my dear cuties, how are you all? My name is Aditi Children and हम लोग यहाँ पर आपको कोटा के लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. एज यू कैन सी एट बैक ऑफ मी, ये वो कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं. 6 to 8 का ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. एंड इसमें गुड पार्ट ये है कि वील बी कवरिंग द बेसिक NCERT, मतलब जो ज़ीरो लेवल होता है वो कवर अप करेंगे, NCERT कवर अप करेंगे एंड देन वील ग्रेजुअली टेक इट टू द ओलम्पियाड लेवल. सो आज का जो चैप्टर है चिल्ड्रन, दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स, इसका एक लेक्चर हो चुका था. इसके अंदर लाइक देर आर नो एज सच लिमिटेशंस, कुछ नहीं होती इसके अंदर, किसी भी तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे. सेकंड में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड, आज के लेक्चर में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख रहे होंगे. सो बिफोर दैट, दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम जो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही है. एंड वी आर ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन ऑफ कोटा. जिस तरह का लेवल यहाँ पर पढ़ाया जाता है वही हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल हैव टॉट इन सम ऑफ द अदर कोचिंग्स हियर, राइट. सो हम लोग के लेक्चर्स अवेलेबल है. इफ़ यू हैवंट सीन अप टिल नाउ देन प्लीज़ गो थ्रू इट. Moving on, this is a brief about me. Children, I am taking NMTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल है. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन इट. First of all, it is for free. There is like no costing that you have to pay for it. But then important part is कि क्यों मैं बोल रही हूँ आपको ये ज्वाइन करने के लिए, is because see लाइक जो डिफरेंट पूरा जो टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, सो दैट आपका कोई भी लेक्चर लाइक वाइज यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ योर लेक्चर दैट वेज, राइट. दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको हम लोग के जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. So 9,000 is the highest package. Again, I keep on saying that, repeating it again and again. So 9,000 highest package hai, which is same for 6, 7th and 8th. When you use my code AVLIVE, so you get 30% of discount. So this price comes down to 6,300. So the complete package that you're getting is only of 6,300. Don't keep this knowledge just to yourself. Please spread it as much as you can so that many more students like you can get the benefit out of it. So the complete package that you are getting would include the study material as well as the test series, and it will be for year long. The test series would be for year long, and other inclusions are written here. These all things you already would be getting in that. And again, the good part is children ki if you do not require the study material, like you feel that you have enough study material and you do not require that, you just want to test your knowledge and to know whether you are studying in the correct direction or not, then this is the package for you. This would be of just 2,450 when you use my code AVLIVE and get a 30% discount on that. So again, this test series would be for whole year. There will be part test, cumulative test. Syllabus would be of course given to you. So according to syllabus, these tests would be conducted, and of course you'll be getting the ranks and everything. Again, I would want your attention. I would want your attention on the bi-weekly quizzes. So these are for free children. Bi-weekly quizzes are free and they are of Olympiad level. So if you haven't started giving these quizzes, then please do it, because they are of, again I'm saying that the same thing, that these are of Olympiad level. You will be able to understand whatever you are studying daily, whether you are grasping it properly and whether you are able to applicate that in the questions properly. Then only you will be like able to give the Olympiad level at with a good mindset. So again, coming back to this, these are the different payment modes which you can pay through. And again, still if you have queries left, you can call on this number, which is 9549041111. Please call on this number, and children, please go through our website talkingtextbooks.in, right. Before moving on, what all you require, what are the prerequisites? You should be knowing your alphabets properly, your numbers properly, divisibility properly. So we did all this, we have already done this, right. So today we would be doing the second lecture, which is here. All right, so let's start with it. Is it not clear? It's clear, right? So starting with alphanumeric puzzles. So basically इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता चिल्ड्रन. यू जस्ट हैव टू यूज़ योर फील ऑफ द नंबर्स. आपको फील आना चाहिए नंबर्स का, एंड देन यू कैन डू इट.
So like if we see for the first, these are few examples, right? So if you see it here, A1 1B gives us B and 0. So my number should be such, मतलब B का मैं इस तरह से कुछ नंबर लूँ, B का मैं ऐसा कुछ नंबर लूँ कि रिजल्टेंट मतलब B से जब मैं 1 को प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 0 मिलना चाहिए. तो B का मैं ऐसा क्या नंबर ले सकती हूँ, ईदर आई कैन टेक B एज 0. B अगर मैं 0 लूँगी तो यहाँ पर किसी भी तरह से, अब देखो यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, मतलब कैरी फॉरवर्ड एज इन यहाँ पे मुझे 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं दिख रहा है. इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर 0 है तो ऐसे किसी भी नंबर से मैं, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, राइट? अगर मैं B को 0 ले रही हूँ एंड ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट 0 इज ऑलरेडी टेकन, सो आई कैन नॉट टेक दैट. सो 1 एंड 0 आर ऑलरेडी टेकन, आई कैन नॉट टेक दैट फॉर B. सो B में मैं ऐसा कौन सा वैल्यू डालूँ कि यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट 0 मिले, दैट इज सपोज टू बी 9. ऑफ कोर्स मैं B के अंदर 9 ही ले सकती हूँ. सी B में अगर मैं 9 लूँगी तभी ऐसा होगा कि 9 + 1 विल गिव मी 10, राइट? 9 + 1 विल गिव मी 10 और उस 10 का वंस डिजिट है या यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज 0, तो वो 0 यहाँ पर आ जाएगा एंड 1 वुड कैरी फॉरवर्ड, राइट? 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अब मुझे A का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि मुझे B = 9 में ऑलरेडी ले चुकी थी, यानी कि यहाँ पर भी मुझे 9 मिलना चाहिए, राइट? यहाँ पर भी मुझे 9 मिलना चाहिए. तो 1 + 1 ऑलरेडी 2 मेरे पास है. अब मैं A का ऐसा क्या वैल्यू डालूंगी कि मुझको 9 मिल जाए, दैट विल बी ऑफ कोर्स 7. 7 अगर मैं वैल्यू डालूंगी तो 7 + 1 + 1 इज 9. सो 90 मेरा आंसर आ जाएगा, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन. दिस इज 2AB AB1. सो B अगेन, B का मैं ऐसा कौन सा वैल्यू डालूं कि मुझको 8 मिल जाए. ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी अ सिंगल डिजिट नंबर, तो दैट विल बी 7. ये तो बहुत ही आसान है कि B क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए. 7 + 1 कितना होगा, 8 होगा. अगेन आज के भी लेक्चर में हम लोग चिल्ड्रन विल बी डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ओनली, देन ओनली इट विल बी क्लियर, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आपको कुछ ना कुछ फील से समझ में आएगा, राइट? सो आज भी हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे. सो अगेन दिस इज 7 here. So what am I supposed to add with that I get 1 here? 7 के अंदर मैं क्या ऐड करूँगी कि मुझे यहाँ पर 1 मिल जाए. सो ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी 4. अगर मैं A को 4 लिखूँगी, A को अगर मैं 4 लिखती हूँ तो 7 + 4 इज 11. तो 11 का 1 यूनिट प्लेस पर मुझे मिल चुका है, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1 एक यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अब 2 + 1 इज 3 ऑलरेडी. A मेरा क्या है, 4 है, वो मुझे मिल चुका है, दैट इज +4. तो मतलब 7 मेरे पास रिजल्टेंट आना चाहिए एंड विच इज़ सो वेरी ट्रू, इट इज़ ऑलरेडी कमिंग. B मैंने 7 लिया ही था और ये यहाँ पर ट्रू हो गया. सो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोग इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो वो फील से या प्रैक्टिस से ही आ पाते हैं. तो अपन क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड. So now, my first question says, without performing actual addition and division, write the quotient when the sum of 69 and 96 is divided by first 11 and then 15. Right? So अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चिल्ड्रन? So see to it. देखो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं समझाती हूँ. अगर मेरे पास AB है प्लस BA है, यही चीज़ हो रही है. दोनों में क्या है, दोनों में सेम डिजिट्स हैं, बस उनका प्लेस इंटरचेंज हो गया है, राइट? जो यहाँ पर वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर है, वो यहाँ पर टेंस प्लेस पर है, राइट? सो इफ़ आई हैव समथिंग लाइक दिस, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो सी टू इट, ये क्या हुआ, दिस इज 10A + B. इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको. इस AB को आई कैन राइट इट लाइक दिस. (10A + B) plus this BA also I can write it like this, 10B + A. इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट? अब मैं क्या करूँगी, 10A, देखो 10A + A becomes what? 10A + A becomes what? 11A.
right? One thing. Then 10b, this 10b plus b becomes what? 11b, right? अब मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ, 11 को कॉमन ले सकती हूँ, a प्लस b, तो इसका ये मतलब हुआ कि ab प्लस बी है। अगर आप ab प्लस बी यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सिर्फ प्लेस इंटरचेंज हो रहा है उनको ऐड करोगे, उनको ऐड करने के बाद अगर उसे आप डिवाइड करना चाहोगे और आप पता करोगे कि भाई कंप्लीटली डिविजिबल किससे है, तो वो 11 से भी डिविजिबल होगा कंप्लीटली, और उन नंबर्स के सम से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उन नंबर्स के सम से भी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको यहीं अप्लाई करके देखते हैं। सो माय फर्स्ट थिंग इज 11, फर्स्ट इज 11, तो मुझे देखना है व्हेन द सम इज डिवाइडेड बाय 11, अगर ये 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ इसके सम को, दैट इज 69 प्लस 96 के सम को अगर मैं 11 से डिवाइड करना चाहती हूँ तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी, या तो 11 से डिविजिबल होगा वो या उन दोनों के सम से, तो इन दोनों का सम मतलब 6 प्लस 9 का सम इसका क्वोशिएंट होगा। क्लियर है, आई बात समझ में भाई? ये दोनों ही इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ए बी प्लस बी ए के ये क्या हैं, फैक्टर्स हैं, राइट? तो ए बी प्लस बी ए 11 से भी डिविजिबल होगा और ए प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। अगर 11 से डिविजिबल है तो आंसर आएगा ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आएगा 11, राइट? तो सेम थिंग वी कैन सी इट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 69 प्लस 96 अपॉन 11, मुझको कितना मिलने वाला है, 9 प्लस 6 15। क्लियर? तो इसका आंसर तो आएगा कितना, 15। अब अगर मैं सेकंड को देखूं, राइट, सेकंड वाला इज व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 15, मतलब 69 प्लस 96 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर रही हूँ, राइट, यानी कि a प्लस बी से डिवाइड कर रही हूँ, राइट, a प्लस बी इज 15 ओनली, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 11। दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 11, राइट? इस तरह से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, राइट? डिविजिबिलिटी ऑफ 11 वैसे ए बी सी 3 नंबर्स से लेकर के भी करते हैं। सो दिस इज वन थिंग चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? Shall we do next question now? आया समझ में? Next question says, without performing actual computations, find the quotient when 94 minus 49 is divided by 9 and 5. Again, same चीज़ है, देखो, this is A, B, B, A. अब इसके अंदर subtraction हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? Let's see to it. This is A, B minus B है. I can write it like this, 10, this is 10A plus B minus 10B plus A. This is how I can write it. माइनस का साइन बीच में, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, 10A plus B minus 10B minus A. अब 10A और माइनस A, 10A माइनस A कितना होगा, 9A, एंड प्लस B माइनस 10B, प्लस B माइनस 10B कितना होगा, माइनस 9B, राइट? अगेन अब इसको सॉल्व किया, 9 कॉमन, A माइनस बी, सो ए बी माइनस बी ए के भी दो फैक्टर्स हो गए, दैट इज 9 एंड A माइनस बी, तो ये इन दोनों से ही डिविजिबल होगा, राइट? ये इन दोनों से ही डिविजिबल, कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस 9, so let's talk about 9. This is first is it is talking about 9, so 94 minus 49 upon 9, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो इसके सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है उससे ये डिविजिबल होगा, मतलब इसका जो क्वोशिएंट है वो वही आएगा, दैट इज 9 माइनस 4 विच इज हाउ मच, 5। यानी कि इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी एक्चुअल पूरा कंप्लीट करने के बाद, कि पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने 9 से डिवाइड किया तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिला, मैं डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकती हूँ, when the numbers are given in this form, right, in this form.
अब सिमिलरली सेकेंड चीज़ भी वही है, 94 माइनस 49, इनका a माइनस बी दैट इज 9 माइनस 4 कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो बचा क्या, 9। भाई ये दोनों ही फैक्टर्स होंगे इसके, अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो ये रिजल्टेंट आ रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है तो ये रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब क्वोशंट आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर, छाप लो बेटा इसको, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। आज क्वेश्चंस ही होंगे बेटा, और उस क्वेश्चन के थ्रू ही जो थ्योरी है वो समझा दी जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थ्योरी होती है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन सेज इफ सम ऑफ द नंबर्स 985 and two other numbers obtained by arranging the digits of 985 in cyclic order is divided by 111, 111, 22 and 37 respectively, find the quotient in each case। करो इस क्वेश्चन को, डू इट। देखो इसके अंदर भी सेम चीज़ लग रही है, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी। अब सेम तरीके से आप यहाँ पर 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 100B प्लस 10C प्लस A देन प्लस 100C प्लस 10A प्लस B, कितना हो जाएगा, 100 के कितने हैं यहाँ पर, सॉरी A के कितने हैं, दिस इज़ 1, देन ओके this is the other one and this, so this is going to be 1 1A, similarly 1 1 1B plus 1 1 1C, राइट। ये इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरह से, सेम तरीके से किया अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा। तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 111 और एडिशन ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स, एडिशन ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स, राइट। सो अब समझ गए ना, या तो ये इससे डिविजिबल है या इससे डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। so, अब फर्स्ट वाला वो क्या बोल रहा है, अगर वो 111 से डिवाइडेड है, सो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग इट, अगर मुझे 985 प्लस 859 प्लस 598, साइक्लिक ऑर्डर यही हुआ। साइक्लिक ऑर्डर मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जिस तरह से उन्होंने बोल रहा है हमें उसका अरेंजमेंट, जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं करना है, वो साइकिल में ही चलने चाहिए, मतलब एक के पीछे एक जैसा उन्होंने बता रखा है, उसी तरह से अपने को करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी 985 देन 859 देन 598, राइट। अब इफ इट इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट 111, अगर 111 से डिवाइडेड है तो उसका क्वोशंट कितना आने वाला है, क्वोशंट कितना आने वाला है, ऑब्वियसली उन तीनों नंबर्स का सम, उन तीनों नंबर्स का सम, मतलब 9 प्लस 8 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अगर मैं इसको 22 से डिवाइड करना चाहूँ, so if I want to divide it by 22, that is 22 मतलब इन तीनों का सम, तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, 111 आएगा, सिंपल एज दैट।
सेकेंड 985 प्लस 859 प्लस 598 डिवाइडेड बाय 22 है, तो रिजल्टेंट इसका अपने आप मुझे पता है ट्रिपल बनाने वाला है। यह हमने इसको सॉल्व करके देख ही लिया है, राइट। नेक्स्ट 37। अपॉन 37 है, राइट। 37 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये है एंड 37 इज गिवन टू मी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लेट मी टेक ब्लू, ठीक है। अब 37 के अंदर मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना हो गया, 111, यानी कि दिस बिकम्स व्हाट 111। मेरे पास आंसर कितना आ गया 111, ओह सॉरी 22। क्यों, अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ। देखो 37 into 3 is how much? 111। सो मैंने क्या किया, इसको 111 बना दिया, ये का यही, ये वाला जो फर्स्ट वाला था ना, ये बना दिया मैंने 111। तो मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए, करेक्ट है। पर जब मैंने 3 को डिवाइड किया, यहाँ पर अगर 37 से मैंने इस पूरे नंबर को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने इस नंबर को, तो नीचे तो मुझे 111 मिल गया, तो मेरा रिजल्टेंट आ गया 22 उस अकॉर्डिंग से। पर यहाँ पे 3 भी तो है, 3 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दूंगी। आ रही बात समझ में भाई, ये ऑल एज इट इज़ था, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया नीचे डिनोमिनेटर में, ताकि मुझे क्या मिल जाए 111। 111 मिलते ही मुझे रिजल्ट क्वेश्चन क्या मिल जाएगा 22। बट क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं 22 के साथ भी 3 से एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा आंसर 66। आए समझ में बात, कर लो इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द डिफरेंस ऑफ 985 एंड 958 इज डिवाइडेड बाय 9, इज डिवाइडेड बाय 9। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, 985 958 चेंज कहाँ हो रहा है, दिस इज सेम, ये सेम है 85 58, 85 58। इसका मतलब रिमेंबर, अगर और इसका अपन को सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है और फिर मुझे फाइंड करना है कि भाई 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा। सो इफ़ यू रिमेंबर ए बी माइनस बी अगर मैं करती थी, तो इसके फैक्टर्स क्या आते थे 9 एंड ए माइनस बी, मतलब एक तो ये 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि 9 से डिविजिबल होगा, और दूसरा किससे डिविजिबल होगा, ए बाय बी से, मतलब कि 8 माइनस 5 से, क्योंकि 9 तो एज इट इज़ है, 9 तो एज इट इज़ है। तो अब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, इसका रिजल्ट डायरेक्टली कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लो इसको, समझ में आ रहा है, सेम ही चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ ही लगी हुई है।
नेक्स्ट करें. Okay. This question says, given that the number 67y19 is divisible by 9, where y is a digit, what are the possible values of y? राइट तो मुझे ऐसा नंबर इससे फॉर्म करना है, इसमें बेसिकली मुझे ऐसा नंबर फॉर्म करना है 67y19 कि मुझे क्या मिले, ऐसा नंबर मिले विच इज़ डिविजिबल बाय 9. तो 9 का डिविजिबिलिटी इफ़ यू रिमेंबर क्या होता है कि सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर मैं करूँ तो दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो पूरा कंप्लीट नंबर विल ऑल्सो गेट डिविजिबल बाय 9. राइट तो अब यहाँ पर अगर अपन ऐड करें एंड y इज़ अ डिजिट मतलब सिंगल डिजिट है, y सिंगल डिजिट है, तो इफ़ आई ऐड 6 + 7 + 1 + 9 + y is equals to how much? 9 and 10. 10 and this is 7, 14 and 13. So 23 plus y, right? 23 plus y. So 9 में 9 3s is 27. And so on, right? So 23 के अंदर मुझे कोई सिंगल डिजिट ही मैं ऐड कर सकती हूँ. y हैज़ टू बी अ सिंगल डिजिट ओनली, राइट? तो अगर मैं ऐड करूँ 4, if y equals to 4, राइट? if y is equal to 4 तो ये कितना हो जाएगा? 23 + 4 दैट इज 27. एक केस ये हो सकता है, राइट? उसके बाद 5 6 7 8, नेक्स्ट इज 36. 36 मतलब 23 में मुझे और कितना ऐड करना पड़ेगा? 13 और ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो 9 से डिविजिबल होगा, राइट? ऑब्वियसली नेक्स्ट इज 36. 9 4 is 36. तो 23 को 36 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? इसमें 13 ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो 13 ऐड करते ही तो होगा ही नहीं क्योंकि y इज अ सिंगल डिजिट. y सिंगल डिजिट है तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 4 पर ये इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई कर जाएगी कि जो नंबर 67419 है दैट इज डिविजिबल बाय 9. क्लियर? इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. नेक्स्ट करें. क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4. सोचो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट 18, राइट? 18 अगर मैं 18 की बात करूं सो इट इज डिविजिबल बाय 2. इट इज डिविजिबल बाय 2 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट? ऐसे आप लोगों को और 2-3 नंबर्स, दिस इज योर होमवर्क कि और ऐसे 2-3 नंबर्स आप लोग फाइंड आउट करना. हर एक केस में ऐसे 2-2 और 3-3 नंबर्स और फाइंड आउट करना विच इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय 6 4 8. इस तरह से एक एक मैं बता देती हूँ. सो अगेन अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6. सो इफ़ वी टॉक अबाउट 15, ठीक है, अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 इज डिविजिबल बाय 3. 15 3 से डिविजिबल है बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, राइट? देन इज इफ वी टॉक अबाउट 42, if I talk about 32 and 34, no, not 34, right? 28. Then 28 is divisible by 4 but not by 8, right? And both 4 and 8 but not by 32. Now this all is your, rest is your homework. आपको आगे की और दो फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? नोट कर लो.
सी इसका क्या होगा, 48 हो जाएगा. सो 48 इज डिविजिबल बाय 4 and 8, राइट. Right, 48 is divisible by 4 and 8 both, but it is not divisible by 32. Clear? Clear children? बाकी के आप लोग फाइंड आउट करते हैं एक 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 करके. Next, if 3x2 is a multiple of 11 where x is a digit, what is the value of x? अब ये क्या बोल रहा है कि 3x2 जो है ना, 3x2 is a multiple of 11, मतलब it should be divisible by 11. Multiple of 11 का मतलब वो x 11 से divisible होना चाहिए. So where x is a digit, x single digit है, अब वो x क्या हो सकता है? So 3x2. अब 11 का डिविजिबिलिटी यू नो कि मैं क्या करूँगी, ऑड एंड ऑड नंबर्स का एडिशन, और फिर वो डिविजिबल होना चाहिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट करूँगी अगर मैं ऐसे इवन प्लेस वाले से, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बेसिकली 0 मिलना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 11 तो यहाँ पे मिलने से रहा क्योंकि इट इज़ वेरी स्मॉल नंबर. दिस इज़ 5 माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली x कितना हो जाएगा, 5. क्लियर? x यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा. आंसर इज 5. क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट देखें. If this is a number x as its 10th digit such that it is divisible by 4, find all possible values of x. So ये जो नंबर है 98215x2, so मुझे बेसिकली x का ऐसा वैल्यू निकालना है कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए. तो x के वो सारे वैल्यूज़ मुझे निकालने होंगे जब ये 4 से डिविजिबल हो जाए. सो x अगर इक्वल्स टू मैं 1 रखूँगी, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, मुझे लास्ट के 2 नंबर ही चेक करने, विच इज़ डिविजिबल बाय 4. तो x अगर 1 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4. देन x इक्वल्स टू 2 पे नहीं होगा, 3 पे 4 8 32 पे हो जाएगा. x इक्वल्स टू 3 पे हो जाएगा, राइट. x इक्वल्स टू 4 पे नहीं होगा, 5 पे हो जाएगा. x इक्वल्स टू 6 अगर मैंने किया तो नहीं होगा, 7 पर हो जाएगा. x इक्वल्स टू 8 पर नहीं होगा, 9 पर हो जाएगा. बस ये सारे x के सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर अगर मैं इसे लिखूं, इस x की जगह पर अगर मैं ये सारे नंबर्स लिखूं तो ऑल दोज नंबर्स वुड बी डिविजिबल बाय 4. क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर? छाप लो इसको. नेक्स्ट, वही जो अल्फा न्यूमेरिक अपन पढ़ रहे थे, दीज आर नोन एज क्रिप्टेरिथम्स. ओके, सो बेसिकली मुझे इनमें इनके जो नंबर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके वैल्यूज़ निकालना है और इस तरह से सेट करना है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट दे रखा है वो एकदम ट्रू हो जाए, ट्रू, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. अगर सी 7 मुझे दिया हुआ है, 7 B A एंड दिस. अब 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँगी कि मुझको 9 मिल जाए. इट कुड बी इधर 6, या तो A 6 हो, राइट, तो फिर ये 9 आ सकता है, या फिर अगर मैं A 5 लूँ, A को अगर मैं 5 लूँगी तो 9 कैसे पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे मेरे पास एक कैरी फॉरवर्ड 1 और हो, राइट. मतलब कि A का वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 3 इज़ 8, 8 + 1 कैरी फॉरवर्ड जो मेरा यहाँ से जनरेट होना चाहिए
तो वो कितना हो जाएगा, 9 मुझे दे देगा। अब अगर मेरा 5a है तो 5 यहाँ मतलब ऑलरेडी आ चुका है। अब 7 में मैं कितना ऐड करूँगी कि मुझको 5 मिल जाए। सो आई विल ऐड 8। अगर मैं 8 ऐड करूँगी तो मुझको 15 मिल जाएगा। 15 ऐड करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसका मतलब 6 नहीं हो सकता, इसका वैल्यू 5 का a ही होगा। अंडरस्टूड। b का वैल्यू होगा a 8, a का वैल्यू होगा 5। क्लियर आए समझ में? सोचो थोड़ा। नेक्स्ट करें, करो कोशिश करो थोड़ी। अब देखो दिस इज क्वाइट इजी। अगर यहाँ पे देखो 1 + b = 0 दे रखा है। अब वो किस केस में होगा? अगर मैं b = 0 लेती हूँ, अगर मैं 0 लेती हूँ तो 1 से ऐसा कोई नंबर मैं ऐड नहीं कर सकती जहाँ पर मुझे रिजल्टेंट भी 0 ही मिले। समझ रहे हो? और 0 ऑलरेडी गिवन है तो मैं उसको तो ऐड कर ही नहीं सकती, राइट। 1 एंड 0 मुझे ऑलरेडी गिवन है तो मैं उसको ऐड नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ऑब्वियसली b को मुझे 9 लेना पड़ेगा। b को अगर मैं 9 ले लूँगी यहाँ पर तो 9 + 1 कितने हो जाएगा, 10। तो ये 0 ऑलरेडी ले लिया मैंने और यहाँ आ जाएगा मेरा कैरी फॉरवर्ड। अब 1 और 2 ऑलरेडी है, b मुझे क्या लेना है, 9 ऑलरेडी गिवन है मुझे, तो 1 + 1 7 है, सॉरी 1 + 1 2 है, तो यहाँ a कितना हो जाएगा, 7। तो मतलब b = 9 एंड a = 7, ये आ जाएगा। उससे ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट देखें, करो नेक्स्ट, करो कोशिश करो। चलो अब देखो, अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से अगर मैं देख मतलब थर्ड कॉलम है फ्रॉम राइट साइड, तो अगर मैं इफ़ आई सी दिस कॉलम, इसके अंदर 9 लास्ट में आ रहा है, मतलब मुझे जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो 9 मिल रहा है, सिंगल डिजिट है, तो आई कैन से दैट कोई कैरी फॉरवर्ड मतलब सिंगल डिजिट नंबर ही है ना, तो मुझे सिंगल डिजिट ही रखना है। तो 9 कब आ सकता है यहाँ पर, अगर या तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ 2, राइट, a को अगर मैं 2 मान लूँ, या फिर अगर मैं a को 1 मानूंगी, राइट, तो क्या हो सकता है कि भाई 7 + 1 और 1 एक कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, राइट। तो पहले हम 2 से इसको मान करके देखते हैं कि अगर मैंने a = 2 रखा तो यहाँ पर भी मेरा a = 2 ही आएगा। a 2 मैंने यहाँ पर मान लिया क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे b का ऐसा क्या वैल्यू आए कि लाइक आई गेट 8 ईयर, तो b का वैल्यू या तो मैं रख सकती हूँ 6, राइट, या फिर मैं रख सकती हूँ 5। तो 5 से क्या होगा, एक कैरी फॉरवर्ड जनरेट हो जाएगा। अगर मैं रखती हूँ यहाँ पर 6, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। तो 7 + 6 = 13, राइट। 13 मतलब कि यहाँ पर तो 3 हो गया, राइट, यहाँ पर हो गया 3 जो कि है नहीं क्योंकि a अपन ने 2 ले रखा है, तो ये यहीं गलत हो गया। और 1 अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 6 + 2 8 एंड 1 9 हो जाएगा। तो 6 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है, 6 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अब b को 5 लेकर के देखते हैं। b को अगर मैंने 5 लिया और यहाँ पर भी b 5 लिया तो 7 + 5 मुझे देगा 12। तो a = 2 आ जाएगा, करेक्ट है। एक 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो 5 + 2 = 7 + 1 8 हो गया एंड 7 + 2 9, ये कंप्लीट हो गया।
इसका मतलब ए का वैल्यू मैंने लिया 2, बी का वैल्यू लिया बी का वैल्यू लिया 5, राइट। इस तरह से सोचना पड़ेगा बेटा इन क्वेश्चंस को। क्लियर? और एक दो क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। राइट डाउन, लेट्स से दिस इज 2a b, then a b 1, right? 2ab ab 1 and b 1 and 8, right? This is b, b 1 and 8, तो ये कितना हो जाएगा? तो अब नाउ इन दिस यहाँ पे 8 कब जनरेट हो सकता है भाई? ये तो यहाँ से तो कोई कैरी फॉरवर्ड आया नहीं है, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी गिवन है। b का वैल्यू मैं ऐसा क्या रखूँ कि 8 आ जाए? b मैं रख सकती हूँ 7, तो यहाँ पे 8 जनरेट हो जाएगा। अब b 7 वहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 7 होगा और यहाँ पर भी 7 होगा। इतना मुझे पता लग गया। अब 7 के अंदर मुझे ऐसा क्या ऐड करना चाहिए कि 1 मिल जाए? तो ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड ही होगा, कैरी फॉरवर्ड ही मिलेगा। सो 7 के अंदर आई विल ऐड 4, 7 + 4 = 11, राइट। और किसी भी केस में यूनिट प्लेस पर 1 नहीं आ सकता। 7 में कुछ भी और ऐड करूँगी मैं तो यूनिट प्लेस पर 1 नहीं आ सकता अदर देन 4, सिंगल डिजिट की बात कर रही हूँ मैं। तो a = 4 रखना पड़ेगा मुझे। a = अगर 4 रखा तो मुझे मिला 11, यानी कि 1 एक यहाँ कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पर भी हो गया 4, क्योंकि यही मैंने माना है। तो 4 + 2 = 6 + 1 7, और 7 मुझे मिल गया, राइट। तो ये मेरा बिल्कुल सही हो गया, जो मैंने अज्यूम किया कि भाई a = 4 और b = 7, बिल्कुल सही अजम्पशन था अपना, राइट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। So the question is 1, 2, a, 6, a, b, this is 9, 0, a. Now we are supposed to solve it. ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको एडिशन ही करना है। ऑफ कोर्स सपोज टू ऐड ओनली, यहाँ पर भी एडिशन ही था, राइट। तो अब इसके अंदर क्या देखते हैं अपन, ए बी 9 आ रहा है, 2 + समथिंग, 2 + समथिंग करने पर यहाँ 0 आ रहा है। अब ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि किसी भी केस में 0 नहीं आ सकता अनटिल अनलेस यहाँ पर 8 आए और वो 10 हो जाए, और 10 से यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या मिल जाए? मुझे 0 मिल जाए। उसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब a तो 8 मिल गया मुझे, a यहाँ 8 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, राइट। तो ये तो हो गया। अब 8 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 9 मिल जाए? या तो मैं 1 लिख सकती हूँ, राइट, 1 ही हो सकता है, या फिर अगर 1 ही होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड तो आ ही नहीं रहा है, तो करेक्ट है। b = 1 हो गया, b = 1 है तो ये 9 हो गया। दिस इज 8 and 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया 6, 7 and 8। सो अपन ने बिल्कुल सही अजम्पशन किया, a = 8 है और b = 1 है, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं चिल्ड्रन।
This is how you're supposed to do such kind of questions. You can practice more such questions. आपको exercise 1 और 2 जो है वो complete करके और Google Classroom के ऊपर submit करनी है children. I hope you have understood. Questions playing with numbers के जो questions होते हैं वो इसी तरह से मतलब जो number system से related इस तरह के questions होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं. You have to have the feel. Basic इसका prerequisite यही है कि आपको numbers का थोड़ा feel होना चाहिए, चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए. Right, so this was it for today children. Next class में हम लोग next कुछ different type of questions कर रहे होंगे. Obviously pattern कुछ ना कुछ pattern ही होगा उसके अंदर भी. So that we'll be doing. इस question को अच्छा there is no question here. So this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And yes, remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Bye-bye. Take care.